स्टैंडिंग ओवेशन सर. लंबे हो रहे हैं सारे. Lamba, Lamba. Sorry. Great joke. But moving on to the greater film and the greater motive that we're here for. सर एक इस फिल्म को देख के मतलब ट्रेलर को देख के अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इसमें. इट्स डायनामिक, इट्स रैंडम, there's a lot of weirdness. क्रोकोडाइल से लेके चूचा जा रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है. But you're making it look very easy. Can we please know which is the easiest day on the sets of Fukre 3 and the toughest day on the sets of Fukre 3? I really can't answer that. I think when जब एक बार आप सोचना शुरू करते हो, that's the only easiest day. Because once you start writing for a brand like Fukre, your bad time starts in terms. So just Fukre 3 लिखनी है, वहाँ तक का easy रहता है time. और जब रिलीज हो जाएगी उसके बाद उससे बीच में कोई इजी डे नहीं है. सर आज का दिन भी इजी नहीं है. आज आपको ये भी एक जवाब देना पड़ेगा कि हु इज द इजीएस्ट पर्सन इट्स फुकरे 3. अब आप ये नहीं कह सकते सारे ही टफ हैं. नहीं, सारे इजी तो हैं. हाँ, क्रोकोडाइल में बहुत मुश्किल हुई थी. हाँ, सो क्योंकि हम खाना टाइम पे दे नहीं पा रहे थे उनको और वो मतलब उसने मना कर दिया था कूदने के लिए. मैं नहीं खाऊंगा चूचा को. हट. तभी हमने पंडित जी दिए थे उन्हें खाने के लिए कि पंडित जी वेजिटेरियन है, चलो भैया नहीं खाओ आप. सर आप ना मुड़ रहे हैं, ठीक है. ये इलेक्शन चल रहा है तो अभी पॉलिटिकल. हाँ, आपको बताना पड़ेगा ना हु इज इजी हु इज टफ. इजी है, सब इजी है. क्या है इसमें, अभी सब इजी है. आई डोंट नो व्हाई बट इट फील्स लाइक रिचा चड्ढा लाइक. रिचा तो सबसे ज्यादा इजी है. रिचा तो सबसे. चलो ठीक है, आंसर मिल गया हमें. कैन वी प्लीज 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 क्लैप फॉर मृग सिंह लांबा and for helping us get Fukre. Ritesh is lovely. First of all, very, very good evening. Thank you so much for adding so much friendship in our lives. Thank you for the lovely introduction as well. Absolutely my pleasure. And I cannot tell you, I think it's a representation of everyone and everyone's feelings towards what we feel for dosti, for friendship, for everything that you've brought to the Indian cinema. Thank you. I also feel that there's a lot of gravitation towards friendship in general from Ritesh Sidhwani and Farhan Akhtar. Does that come naturally to you? You tend to choose scripts which are slightly more, you know, the main crux is sort of friendship? You know, I mean, it's not about that. I think it's more what you relate to. And I think it started from when we were 26, 27 when we made that film. And if you notice any of those three characters, they'll be timeless. Whether it's Akash, it's Sid, it's Samir, you can relate to all three of them. I think there's a little bit in each one of us, and I mean both genders, you will find a little bit of an Akash or a Samir or Sid in someone. And that became the genesis of what we wanted to start off, right? So I think as long as you identify with the character, you relate to it, and maybe friendship, I mean, we really strongly believe in that. And I think it comes very easy to us. जिनको कभी किसी को action आ जाता है या comedy आ जाता है. I think for us these bonding, I don't want to say male bonding because we also have a female bonding story which is going to come out very soon. So yeah, I think we relate to it. Absolutely, and I think it's a great depiction. Like every time we see your film, in this also, मुझे ऐसा लगता है कि भोली पंजाबन is probably opposite. She's going against all the boys, but she's still together. There's something that's just bonding them together. Yeah, I mean, she couldn't stay away from the Fukras, so she decided to become a part of them. What is the attraction towards the Fukras? All of them. My next question, it's probably going to be a cliche of a question, but it's still going to come through so that our viewers get to know. How is Fukre 3 different from everything that has been given to us on a platter so far? This one took almost 4 years. That's the difference. It took 4 years, and Mrig is the only director in the entire Excel family who's called the James Cameron of our company. You know, so he is. That's what I name him. ज़्यादा बोल दिया. But there's a reason for that, right? We'll only talk about that after the 28th. Great. The last question that I have for you, Ritesh, is normally in a lot of your films, we also see there are a lot of geographical destinations which are explored. यहाँ पे Delhi has been constant. Was that a conscious choice? What exactly was the reason why this was chosen to be that? That goes to Vipul and Mrig. They've written it.
I think the story was born there. Yeah. And it just organically continued in its second part and third part. Though this does travel, you'll see in 3, they go to South Africa, then they come back. So there is a certain growth to it, I think, but primarily it remains within that zone because they are from there. You know what I mean? I think the way they write the story, it just is still within that. Now, I don't know what miracle he's going to pull out for part 4 whenever he does. Yeah, but Delhi is the primary character actually. Yeah. Apart from the Fukras and Bholi and the all other characters, it's a character you can't take out from the film. Sure. So it has to be there. It is consistent. It Some is or the other consistent. character may not be a part of it, but Delhi, But has, Delhi to be. has to be. And are these characters also from Delhi? No? Yeah, so Brig that's is why. also. Yeah. We're not choosing to character. We're calling him James Cameron. I'm sorry. I don't have your number on my phone, but if I had it, I would change it. Today. Can we please clap for Mrigdeep and for Ritesh? If you could take your seats, and I'm going to call upon the cast, the one who's loved, who's killed it in Made in Heaven 2 and is going to kill it in Fukre 3. Can we please put our hands up together for the honey of a man, Mr. Pulkit Samrat? Looking like $1 million. Hi guys, what's up? Thank you. This is our mutual admiration Absolutely. society. Thank you everybody for coming here for Fukre 3 trailer, yeah, and for making it impossible for us to hear the dialogues because of your screams and your whistles. Thank you so much. Please, let's call the next one. No, I have a question for you before we Oh, call okay. the next one. Itni jaldi se, matlab, we're not Quiz going to get rid of. contest. So, hey, good job. First question that I have for you is आपकी खूबसूरती का राज. What is this Benjamin Button thing going on? चूचे का प्यार. ये मुझे ऐसे लगता है कि मेरे मम्मी पापा ने बहुत एक दूसरे को मलाई वलाई खिला विला के प्यार किया होगा. This is that result, yeah. You have said this The 5 entire seconds. 5 seconds later, oh, अच्छा ये बात है. अच्छा ये समझ में आ गया भाई नॉनवेज चल रहा है यहाँ पे. No, but on a serious note, I want to ask you. 10 साल पहले ये character लिखा था, Honey. As an actor, in order to make a character better with the movement of time, what exactly do you need to do differently? How do you need to make it more relevant with the times that are there? Because ये 2013 की बात है, and of course it was before that also. You know what's one of the best things about Fukre as a franchise? Even the first Fukre is not stale today after 10 That's years. true. And that is why our characters are still there and they still connect with people. And we are really, सब में से मेरे ख्याल से the cast and crew of this film, we all are the biggest fans of Fukre. And we just make sure कि अगर हम एक और part के साथ आ रहे हैं, so we justify what we have done so far. And we ourselves would be disappointed अगर ऐसा नहीं होगा तो. Apart from that, this man doesn't give us any choice. The James Cameron of Excel. He doesn't give us any choice. So we have to really be putting best foot forward. Every time there is Fukre ka some news coming up or there's something on the phone and you're like really excited, I'm going to get the moment to reunite with my OG gang. Yes. What is your excitement like when you get to know? Oh, that is very exciting. Good job. Yes. Good Pulkit. job, yeah. तुम मुझे दिख नहीं रहे, but I love you too. Thank you. You know, the excitement is always really, really high along with the nervousness. क्योंकि हम लोग सिर्फ co-stars नहीं हैं. We all have become family, not over the years, Yeah. just within the first few days of the first part. It wasn't even कि second part में जाके family बने या third में आके बने. We all know what we like to eat, what we like to do in our free times. We keep calling each other for our grounding. अगर कभी कोई स्ट्रेस होता है, कोई एडवाइस भी होती है, तो हम सब एक दूसरे को कॉल करके वी आर लाइक फैमिली हियर. वी आर फैमिली एक्चुअली. दैट्स व्हाट दिस इज अ मैच मेड इन हेवन. Hey, subtle plugins. Can we please clap? Now you can say Pulkit. Say Pulkit twice. 6 बार हो गया, but कोई बात नहीं. Maths का अचार डाल देंगे. Thank you guys. Thank you so much, Pulkit. You can take your seat there, and we can Thank call you. upon one of the biggest characters, I think the most remembered, memorable characters. You know what's the best part today? मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको. Best part ये है कि आज केवल चूचा नहीं है, वीना आंटी आई हैं. Can we please clap for वीना आंटी जो चूचा की मम्मी जी हैं? Can we please clap? And I also have questions for वीना आंटी. मैं पूछना चाहती हूँ क्या मतलब आइए मैम.
मैं सिर्फ ये पूछ रहा है कि कभी आप रास्ते पे निकल गए तो कह रहे हो यार चूचे की मम्मी जा रही है। हाँ हाँ, ये तो हुआ था। मैं जॉब करती थी, जालंधर में थी, और 2013 में ये पिक्चर आई थी। तो जब मैं इवनिंग वॉक करने जाती थी तो आराम से सब नॉर्मल होता था। इस पिक्चर रिलीज होने के बाद बच्चों ने कहना शुरू कर दिया, ओए फुकरा मम्मी, चूचा मम्मी, फुकरा मम्मी, ये कहना शुरू कर दिया। चूचा मम्मी तो सब ठीक लगता था, बट फुकरा मम्मी ना जो उन्होंने बोला तो मुझे लगा यार मैं तो वैसी नहीं हूँ, आई एम अ वेरी सिंपल लेडी। मैंने तो कभी कोई फुकरापंती की नहीं है, बट फिर देन रियलाइज कि अच्छा ये मेरे बेटे की वजह से हो रहा है, और फिर मैंने उसको एंजॉय करना शुरू कर दिया। प्लीज थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस दो सॉरी, क्योंकि मुझे ये आज प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं यहाँ पर मृगदीप लांबा सर को बहुत बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि सर आपने इसको संवारा, तराशा, तो ये चूचा करेक्टर इतना अच्छा निकला कि मेरे बेटे को पहचान मिली इसी करेक्टर से। थैंक यू सो मच आंटी आप वो फुकरा मम्मी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द टीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। कम अब कोई टिश्यू भी दे दो चूचे को प्लीज, ये ईमो हो गया है। Chucha has no respite. Chucha, please come. Can we please clap for Chucha? यानी कि वरुण शर्मा। थैंक यू यार, क्या हाल है फुकरा? कैसा लगा ट्रेलर? जामफड़ है ना भाई, सपने आ रहे हैं। बर्फ कौन कौन नहीं खाएगा अब? थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। मेरे लिए जेन्युइनली बहुत इमोशनल मोमेंट है फुकरे। थैंक यू यार, Good job, good job. बहुत इमोशनल मोमेंट है बिकॉज फुकरे के साथ डेब्यू हुआ था। इस जो बचपन से मन था करने का, जो बचपन से सपना था करने का, उसकी अपॉर्चुनिटी, उसकी जो नींव है वो चूचा है, वो फुकरे है। थैंक यू मृग सर, आई लव यू। थैंक यू सो मच रितेश सर, एक्सेल, फरहान सर। थैंक यू सो मच विपुल सर फॉर राइटिंग इट। थैंक यू सो मच यार एवरीवन। और आज तीसरा पार्ट आ गया भाई, 10 साल हो गए यार फुकराबंदी करते करते। क्या बात है। इस बात पे कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज दोबारा करना चाहूंगा जिससे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। भाई मेरा ना एक सपना है, जब हमारा कॉलेज का पहला दिन होगा ना, दोनों भाई घोड़े पे जाएंगे कॉलेज। तू सफेद घोड़े पे, मैं काले पे। हमने काला चश्मा, लंबी चेन वाले जूते, काली पैंट और लाल कमीज पहनी होगी। भाई लड़कियां मर मिटेंगी हम दोनों पे। वरुण, आपका सवाल का पूछने का क्वेश्चन टाइम ही चला गया, मैंने सारा वैसे ही बोल दिया। ऐसा कुछ नहीं है। आप चूचा आप बोल रहे हो क्या? You're a chuchas, all right. You're going to be chucha for the rest of our life, and we're going to remember you for that as well. Santa Claus के सबसे फेवरेट बच्चे हो आप, बेसिकली। हाँ, जब देखो तब कोई ना कोई वरदान एक्स्ट्रा आपको मिलता ही रहता है। कभी ड्रीम्स देख ले तो कभी कुछ। इसमें हमने थोड़ा बहुत कुछ, we thought we know it, but do you want to talk about what is the gift that is going to be used by Chucha in this? Santa Claus का फेवरेट बच्चा तो हूँ, वो गिफ्ट भी देते हैं, लेकिन अगर मैंने गिफ्ट अभी बता दिया ना तो ये दोनों मेरे फीते काट देंगे। जो हमारे प्रोड्यूसर साहब है, डायरेक्टर साहब है। You will have to say the Bombay crowd फीते क्या होता है? हम मतलब वो कंफ्यूज हो जाएंगे। जो ऊपर होता है, इंच टेप नहीं भाई, लेसेस। हाँ, तो बट बहुत ही अतरंगी गिफ्ट है, बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है, बहुत ही इनोसेंट गिफ्ट है। एंड जैसे पहले भाग में सपने थे, दूसरे भाग में देजा चू था, इस बारी बहुत अतरंगी कुछ होने वाला है। लेकिन अगर आप देखो चूचे को गिफ्ट मिला है सेंटा क्लॉज की तरफ से, तो चूचे की एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी ना, उसको भी 28 तारीख को खोलने दो ना अपना गिफ्ट। वरुण शर्मा इतने क्यूटली बोलते हैं कुछ। हाँ ठीक है, सब सही है। आपको मेरा घर चाहिए, टेक इट। आपको मेरे वसीयत में नाम, जस्ट टेक इट एंड गो। थैंक यू चूचा। कैन वी प्लीज क्लैप फॉर चूचा वंस मोर? थैंक यू गाइस। चूचा एक और सवाल है चूचे के लिए। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि चूचा इतना इंट्रिंसिक पार्ट है ना आपके जीवन का। ऐसा है क्या? मतलब जो चूचा के ट्रेट्स हैं
पता भी नहीं चला आपको और वो आपकी पर्सनैलिटी का ट्रेड बन गया, चिपक गया बिल्कुल? चूचा की पर्सनालिटी का ट्रेड जो मेरी असल जिंदगी की पर्सनालिटी का ट्रेड बना है वरुण, आई थिंक मैं काफी मतलब हर इंसान जैसे सोचता है, काफी चीजें प्लान करता है, ये होता है। आई थिंक एक चीज जो मैंने चूचा से सीखी है वो है हर सिचुएशन में खुश रहना। राइट। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हर चीज़ों में खुश रहना, जो कि चूचा हर कोई भी स्थिति हो वो खुश रहता है, तो वो अडेप्ट करने की कोशिश करी है। प्रॉब्लम है उसमें भी खुशी ढूंढो, प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी खुशी ढूंढो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसमें भी खुशी ढूंढो, और उसके बाद जश्न मनाने में तो खुशी है ही है। So sweet. Thank you so much, Varun. I think that's a lovely answer. बहुत ज्यादा प्रोफाउंड नहीं बोल दिया मैंने? चूचा भी तो बड़ा हो गया है ना जीवन में। नहीं उतना ही है अभी भी, वैसे ही सेम। चूचा की बारी आ चुकी है। चूचा is taking a seat. Varun Sharma, can we please clap for Varun Sharma, guys? Thank you. Varun Sharma इतने शाइन नहीं कर पाते अगर ये जो आदमी है 4 चांद लगाने नहीं आ जाता पर्सनालिटी पे। नाम है इसका लाली। Can we please बजाओ ताली? ओ लाली! ये अच्छा था। है ना? लाली के लिए बजाओ ताली। Thank थैंक यू you. सो मच यार, थैंक यू इतना प्यार देने के लिए हमारी फिल्म को और इतना सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। Manjot, you are beautiful with your comic timing. ये तो केवल एक compliment है. The other thing that I want to talk about is धीरे-धीरे से viewers कह रहे हैं, lots of people keep saying आप जिमी शेरगिल बनते जा रहे हो। पहली पिक्चर में गर्लफ्रेंड नहीं मिली, दूसरे में नहीं मिली, हैं? अब तीसरे में मिलेगी या जिमी बन जाएंगे आप? ये असल जिंदगी में उसका ऑपोजिट है, आपको पता नहीं है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है. We are very happy for पर्सनल you. लाइफ रियल लाइफ अलग रखते हैं। रियल लाइफ में आई थिंक मज़ा वही है, जैसे एज फ्यूचर सेड 28 को जब खुलेगा ना सब कुछ, जो तोहफा आप लोगों के लिए जो तोहफा हमने क्रिएट किया है, तो वो जब आप खोलोगे, आप जब वो देखोगे आपको तभी मज़ा आएगा, अभी बताने से फ़ायदा नहीं है। देखिए ये भी बात है कि इस ट्रेलर में तो दिखाई दिया ही है that there's always this one up that's happening between you and चूचा. Always. Right? ये रवीना कौन है यार? ये बीच में से रवीना कहाँ से निकला? रवीना कहाँ है? हाँ, कौन है? हाँ, हाँ. अच्छा ठीक है. रवीना के बाद बारे में फिर से you will talk about that. Manjot, the question that I have for you is ये one up, ये जो चलता रहता है कि फुकरे 3 में, do you think this one up is going to be taken by you by the end of it? मतलब you're going to be ahead of the game with चूचा जो चलता रहता है छोटा बहुत. नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है. नहीं हम यार भाई हैं यार, Aw, बहुत प्यार है हम दोनों में। आई थिंक सब में ही प्यार है। how happy are you with this film that's coming out on the 28th of यार September? मैं कल से ढंग से सोया नहीं, एंग्जाइटी, नर्वसनेस, एक्साइटेड। आई थिंक मैं एंग्जाइटेड हूँ, एंग्जाइटी और एक्साइटेड का, तो ये बहुत चल रहा है अभी दिल में, दिमाग में। मैंने सही बोला ना, कुछ गलत तो नहीं? थैंक्स। This dialogue is going to be taken in Fukra 4 for sure. Oh yes. Can we please put a आप hand? लोग इतना प्यार देना प्लीज इस फिल्म को कि फुकरे 4 भी उनके माइंड में आए और वो जल्दी बनाए प्लीज। मैं तो चाहता हूँ आए। 110%. And with that, can we please put our hands up together for Manjot Singh? Urf! Lalli ke liye Thank baja you. tali! Please take a seat. Thank you. Can I call upon the next person जिनके बिना ये तो कुछ ही नहीं है. Fukre 3 क्या? Nothing at all. Nothing. I want to talk so much about this girl. So much. She's wild. She's raging. She's lovely. She's so hot. She's so wise. अभी ऐसा लग रहा है कि पार्शल हो गई हूँ मैं, बिल्कुल बायस, बट कैन वी प्लीज पुट आवर हैंड्स अप टुगेदर वो भोली पंजाबन जी, रिचा चड्ढा. रिचा, यू लुकिंग फैंटास्टिक टुनाइट. We love you, Richa. टुनाइट नहीं, वैसे इवनिंग है वैसे. लव यू टू। उससे थोड़ा दूर रहना, ज्यादा बहुत ज्यादा प्यार से बोला यार उसने। मुझे शक हो रहा है उस पे। पुलके तो बड़ी जलन हो रही है, मेरी बारी नहीं बनी उसकी नहीं, मैं अली की ड्यूटी पे हूँ इधर यार। Sweet, very sweet. I don't know what to say about this. We're missing Ali, but definitely we want to talk about this question. I think जितने सारे villains play किए हैं हमारे पूरी Indian cinema में, which are fantastic, OGs हैं, you are added to that list. And we're very happy that you are. आपके favorite villain हिंदुस्तानी सिनेमा में जो आपने देखे हैं, कौन है आपके favorite villain? तो आपके सवाल के पहले हिस्से का मैं जवाब, मतलब सवाल नहीं, आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली इन एनी कैरेक्टर दैट लास्ट्स एंड मेक्स एन इम्प्रेशन ऑन पीपल
it's always the writing. So Vipul Vig is sitting here, our writer, Mrig Deep, Fukra original, looking away. He can't wait to leave from here and go to the mix so he can deliver the film on time. ये हमारी सच्चाई है. But without writers, it's nothing. No character comes. Because जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे इतना अच्छा लगा कि लोग भोली के बारे में जिस तरह की बातें कर रहे हैं, भोली चिड़िया नहीं चील है, कॉफिन में आखिरी कील है. You know, it's very lyrical in a nice way. और मेरी खुशकिस्मती कि ऐसा मुझे किरदार करने को मिला. And it's really truly progressive writing कि इन्होंने फीमेल कैरेक्टर लिखा है, ऐसे लेडी डॉन. And that also in 2013, that was before. Like, and I think that deserves a huge round of applause as well. Film में जैसे कि हमने देखा है ना, भोली is always against the boys. How exactly is it offset? No, we are all one. We are all one very happy family, जी. Fabulous जी. बहुत ही अब है तो है. We become friends actually. हम सब के लिए वो शुरुआती दौर में पहली या दूसरी फिल्म थी. We were all learning. We were all new. Instagram वगैरह ऐसा नहीं था जैसा अभी है, तो हमारी दोस्ती बहुत असली और पक्की थी without giving each other shout outs on stories. But we've hung out a lot. बहुत सारे खाने साथ में खाए हैं, बहुत सारे गम बांटे हैं, बहुत सारी life experiences को share किया है. And my wish is that everybody gets to do at least one film in their life where they can make friends like this. So sweet. Thank you. Thank you. Can we please clap for Bholi Punjab and Urf Richa Chadha? Thank you so much for being here. अब थोड़ी सी इमोशनल सी हो गई हैं. पानी और टिश्यू दोनों. And you can, yeah, thank you. मैं ले लेती हूँ. तूने नाक पोंछी इससे? नहीं पहुँची तो क्या ही मजे. No, हो गया. It was a passing phase, guys. Relax, कुछ नहीं हुआ है, okay? Get on with your lives. Thank you. नाक नहीं पहुंची, पसीना तो पहुंचा होगा. सॉरी, लेट हो गया बताना. काफी लेट हो गया. Thank you so much, Richa Chadha. You can take your seat. I'm going to Thanks. call upon the person जिन्होंने यार मेरा बड़ा मन कर रहा है नाच लूं बिल्कुल. यार मैंने पागल हो जाना है, ठीक है. When I call him on stage, I'm going to go crazy. We love you, Pankaj Tripathi. ये धन्यवाद. थैंक यू. ये बताओ कि सीटी घर से लाए हो कि गेट पे मिला है? गेट पे बटा है ना सीटी. While we're at it, अगर हम हमारे whistles को थोड़ा सा साइड में रख लें, हम तालियां बजा के प्लीज पंकज सर को मुबारकबाद इसलिए भी देना चाहते हैं because he's recently won the National Award for a supporting actor in this very important film called Mimi. Of course, Pankaj sir, whenever he graces the screen, we cannot forget the character that he plays. And हाँ तुम लोग steal कर रहे हो मेरी limelight. मैं कहने वाली थी ना. Undo कर दो उसको. Can we please say happy birthday to Pankaj sir. Happy birthday Pankaj sir. अच्छे से गाएंगे, केक भी काटेंगे, लेकिन अभी फुकरे 3 के बारे में क्यों? अरे धन्यवाद. पंकज सर खुलासा कीजिए पहले तो. पंकज सर साल में 2 बार बर्थडे बनाते हैं, एक आज और एक 28 को जिस दिन ये फिल्म रिलीज होगी. तो असली वाला उसी दिन है 28 को. वैसे मैं कभी नहीं मनाता हूँ, न ये न वो. मुझे उतना रुचि नहीं है इस कॉन्सेप्ट में. थैंक यू. आई लव यू टू. पंकज सर, पंडित जी का जो कैरेक्टर है उसे यस जिंदाबाद. 1 सेकंड. जिंदाबाद.
भाई बोली पंजाबन और चूचा थे इलेक्शन में, आपने इनको ही खड़ा कर दिया। पंडित जी के साथ ये जो, हाँ बहुत बढ़िया, हाँ हाँ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारा नेता कैसा हो, पंकज जी जैसा हो, दैट्स करेक्ट सर। ये जो अटैचमेंट है पंडित जी के साथ में, हमारा तो बहुत सारा है, आपका अटैचमेंट कितना है? मेरा भी उतना ही है जितना आपका है। ठीक है सर, हो गया मेरा काम। नहीं नहीं, उससे थोड़ा ज़्यादा है इनसे, क्योंकि फुकरे 1 में पंडित जी एक मुश्किल से उस कैंपस में जहाँ ये दोनों आना चाहते थे उसके चौकीदार थे गेट के, तो 8-10 सीन का रोल रहा होगा। वहाँ से पंडित की जर्नी है कि पंडित ने बाध्य किया विपुल को और मृग को कि मुझे और लिखो, लिखते लिखते अब पूरी फिल्म में बिखर गया। तो एक गेट कीपर पर बैठने वाला दरवान धीरे धीरे पूरी फिल्म में दरवानी करने लगा। तो खास जर्नी है ये सर। ये हमारे जितने पंकज त्रिपाठी फैंस हैं, विच इज़ एवरीबडी हु वॉचेस योर फिल्म्स, वो हमेशा ये कहते हैं आपकी कॉमिक टाइमिंग बहुत ही माशाल्लाह, वेरी नाइस। आप जिस प्रकार से डायलॉग्स डिलीवर करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं। राज जो है वो ज़रा हमारे जितने व्यूअर्स हैं, जितने आपके लवर्स हैं, फैंस हैं, उनको प्लीज़ बता दीजिए। कोई राज नहीं है, बस खिचड़ी खाता हूँ सेट पे रोज, तो पेट शांत रहता है तो दिमाग भी सही रहता है, फिर लाइन भी सही डिलीवर हो जाती है। नहीं जेन्युइनली, मतलब ये सही आंसर है, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। खिचड़ी ही खाता हूँ 30 दिन शूटिंग में, जितना दिन भी रहूँ। सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। हाँ कैन जी। यू प्लीज? हाँ वो अच्छा पंच लैंड किया है ना, बर्फ के गोले वाला। मुझे भी हंसी आ गई देख के वो ट्रेलर में। पंकज त्रिपाठी के लिए कैन वी प्लीज पुट आवर हैंड्स अप टुगेदर गाइस? थैंक यू सो मच। विपुल विक के बारे में इतनी बातें सुनी है, अगर वो नहीं होते तो आई डोंट थिंक हमारे जितने कैरेक्टर्स हैं जिनसे हम इतनी मोहब्बत करते वो हो पाते। सो एक एक करके आई वुड लाइक टू रियली आस्क यू टू प्लीज पुट योर हैंड्स अप टुगेदर फॉर द पीपल दैट यू डोंट सी when you watch the film, but they are really very important in making the film come true to its glory, to the 10-year glory that we are going to celebrate today. Can we please put our hands up together for Anil Thadani, AA Films distributor? Can we please put our hands up together for Vishal Ramchandani, the CEO of Excel Entertainment? Can we put our hands up together for Qasim Jagmagia, the co-producer Excel Entertainment? And can we please put our hands up together for the man called Vipul Wake, the writer for Fukre 3. Can we also quickly have the birthday cake for the man of the moment? सर खिचड़ी का बनाया हुआ है केक है, खा लेंगे? अरे प्लीज मत, मैं असहज हो जाता हूँ, तो मुझे अच्छा रहेगा आप ना कटवाएं। मैं थैंक यू सो मच इस जेस्चर के लिए, बट ना कटवाएं तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर। मैं असहज हो जाता हूँ, मैं बहुत थोड़ा केक काटने नहीं हम वाला खा व्यक्ति लेते यार, मना कर दिया हूँ। नहीं आपने। नहीं, आप पीछे खा लेना। सर आज आपने इतनी इम्पोर्टेंट बात कह ली है, हम बर्थडे केक नहीं, हम घर जाके सब खिचड़ी खाएंगे। नहीं मैं ऑलरेडी मोमोज खिला चुका हूँ सेट पे, पूछो। बहुत बहुत खुद खिचड़ी खा रहे हैं, मोमोज लोगों को बन के मोमोज आते हैं खिला रहे इनके हैं। Can we please put our hands up together for everyone that's present here, including the media, including the audience. But अब असली चीजें शुरू होती हैं। अब हम आपसे पूछेंगे, we'll take this moment so that you can ask your questions. This entire set is open for the media Q&A. मेरा सवाल रितेश जी से सबसे पहले है। आज से 10 साल पहले आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट थे। उसके बाद जितनी भी आपने फुकरे 2 बनाई, 3 अब जो भी आ रही है, लेकिन उस समय आपके ओवर कॉन्फिडेंस की क्या वजह थी? आपके पास एक टैलेंटेड टीम थी, लेकिन फिर भी इतना ओवर कॉन्फिडेंस। हम लोग को लगा था हल्की फुल्की फिल्म होगी, लेकिन फिल्म ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस भी किया और बहुत अच्छी लगी लोगों को, जबान पे चढ़ गई। अच्छा शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं पता आपको किसने कहा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट था, क्योंकि आपने हम लोग को कहा था। नहीं आई सेड वी वर कॉन्फिडेंट ऑफ द स्क्रिप्ट। जब मृग ने कहानी लिखी थी एंड व्हेन ही प्रेजेंटेड टू अस, अगर आप कहानी को आज भी देखोगे, यू कैन गो एंड वॉच दिस फिल्म अगेन, एंड आई थिंक वो जो 2 लड़कों जो हनी और चूचा के जो एम्बिशन थी,
जो उनकी स्ट्रगल थी, जो उनका एक एम्बिशन था, मतलब क्या था, एक सिंपल था कि हमें कॉलेज में जाना है, एंड दे डिडंट हैव द नेचुरल स्किल एंड दे फिगर्ड आउट अ वे, एक जुगाड़ करके, राइट. सो आई जस्ट फील दैट वॉट एवर देयर एस्पिरेशन वॉज, जो उनके थे, वॉज वेरी रिलेटेबल. Like, and I could identify because I mean, it took me back to my college days when it was aspirational for to going to a college in South Bombay. I went to a school in Jew here. I don't think I remember Kasim and me were in school. Most of the people would go to the colleges which was Miti Bai, all around. To travel to South Bombay, it was not, I mean, it wasn't there. I don't think besides me and 1-2 other kids who aspired to do that. So I'm just trying to give you a comparison. The minute उसने जब script भेजी हमें and he narrated to us, there was an instant relatability to it. I know it was small that time कि यार ये क्या है, but somewhere again, like मैंने जब इन्हें पहले भी किया, जब दिल चाहता है लिखी थी, was the similar way कि you could identify with it and it feel real, and that's what happened. And I'm really glad कि it went on to becoming a franchisable film for us. जी मेरा सवाल डायरेक्टर से भी है. लामा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस फिल्म में जैसे जो चूचा का कैरेक्टर है, और बहुत जगह ऐसा है जहाँ आपको वल्गैरिटी से बचाते हुए कॉमेडी लिखना है, और आपके साथ विपुल जैसे इतने तगड़े राइटर हैं, लेकिन फिर भी एज अ डायरेक्टर उनको उसमें इनोसेंस लाना, उसको ब्लेंड करना कितना डिफिकल्ट था फिल्म बनाते हुए? देखिए, शुरुआत तो अंदर से ही होती है, तो हम ही खुद इतने इनोसेंट हैं कि हम मतलब चाह के भी शरारत वाली चीज़ें लिख नहीं सकते. सो बट सी, इंटेंशन यही था हमेशा से कि एक क्लीन, एक ऐसी कॉमेडी या एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो सबके साथ देखी जाए. एंड दैट इज़ द रीज़न दैट वी इवन आफ्टर 10 years ये ब्रांड जो है मतलब ग्रो इसीलिए किया है क्योंकि इसकी ऑडियंस जो है, इसकी रीच जो है इज़ वाइड. इट्स नॉट लिमिटेड टू अ सर्टन सेक्शन. सो अगेन वही था, आइडिया यही था कि आपको टेम्पटेशंस होती हैं, ईजी भी होते हैं, मुझे लगता है थोड़े ऑफ द ब्लॉक जोक्स लिखने थोड़े ईजी होते हैं, बट वी ऑलवेज स्टेड अवे फ्रॉम इट क्योंकि हमारे पास हथियार और एम्यूनेशन बहुत है, तो जो आपने अभी ट्रेलर में देखा, फिल्म में भी बहुत है. सो आई थिंक हमें ज़रूरत पड़ी नहीं उस चीज़ की. थैंक यू. Ritesh, hi. It was Russell here from PTI. Hearty congratulations for the trailer. Obviously, this is one of the most loved franchises in India. What I would like to ask you, from putting a producer's hat on, we have recently seen after Bollywood was going through a struggling period, there has been 3 hits in a row in 1 month. Gadar 2, Oh My God 2, Dream Girl 2. Now Fukre 3 is coming and it looks tailor-made to be another big hit. As a producer, do you think so that the film industry, producers in general now, would feel that sequels are a much safer bet for the audience? You know, I don't think there are sequels which have not worked also. I'm not going to name them, but I just feel that if there is an investment made in those characters, there's a love for them, there's more for people to consume of them, then those should be made, and you should only continue making it if you feel those stories can organically, seamlessly move forward, right? Of course, then there's already a fan base for it, so it only makes sense, but you have to deliver. And there are some films you should just leave aside. You've created a certain mark, and if you're not 100% sure about it, don't attempt it because it's just going to be, because then you're going to kill the franchise, right? Or the love what that film had generated. And I think what has happened is that what you're talking about, all these movies, I think they somehow, including like what you saw with the trailer, it invites you for a collective viewing. You know, so there is a sense of an urgency created that I want to go and I'll mark a date and I want to consume them in a collective environment. So whatever that emotion is, whether it's laughter, it's sorrow, it's joy, you'll want to experience that with a group rather than it just being individual. So I think that's what is going to slowly become going into a cinema. You know, you're going to be wanting to enjoy that in a crowded moment rather than just sitting at home and consuming it. वरुण भाई, मेरा सवाल आपके लिए भी एक है. वरुण, कॉमेडी में आपको पता है, मैंने पहले भी कहा है कि यू आर लाइक द न्यू एज गोविंदा. यू आर सो गुड इन कॉमेडी. So thank you so much. So, Varun bhai, when you return to a character like Chucha, but you leave an impression, whether it's Chucha, whether it is Sexa, you leave that impression. When you return to a character like Chucha, is there the first time when you do it, you know, raw है, तो हम जो हमारे मन में है वो हम कर रहे हैं. But now when you're going it has this big built-in fan base. तो थोड़ी सी nervousness आ जाती है, कैसे मैं वो level maintain रखूं?
100% आती है भाई. आई थिंक जो आपने बोला, जैसे हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट फुकरे से एंड देन सेकंड थर्ड टाइम, ऑब्वियसली बहुत रॉ थे, पता नहीं था. जैसे मेरी तो डेब्यू फिल्म थी, कुछ भी नहीं पता था. मृक्स और मैं हम लोग बैठते रहते थे, रीड ही करते रहते थे, रिहर्स करते रहते थे. प्रोसेस सेम ही है अभी भी. बट आई थिंक 10 साल पहले और अभी 10 साल में कुछ एक्सपीरियंस आए हैं. एज वाइज आप बड़े हुए हैं, मेच्योरिटी वाइज आप बड़े हुए हैं, काम का एक ग्राफ गया है, उसके आपको एक्सपीरियंसेस आए हैं. सो आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी इन फुकरे 3, आई थिंक विच कलेक्टिवली मृक्स और हम बैठ के, कि जितना भी सीखा है इस 10 साल के एक्सपीरियंस को, उसको अनलर्न करना. बिकॉज वो अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको लगता रहेगा. लेकिन जो ओरिजिनल था जब स्टार्ट किया था तब पता ही नहीं था कुछ, एकदम रॉनेस थी और खुल के बस आप कर रहे थे. तो वही चीज़ को वापस सेकंड पार्ट में भी लाना और वही चीज़ को वापस थर्ड पार्ट में भी लाना. तो आई थिंक अनलर्न वाज द प्रोसेस फॉर मी, इफ आई हैव टू से फॉर चूचा दिस टाइम. Hello. Hi. Hi, I'm Grace here. Here. Hi. So trailer looks very amazing, of course. My question is to all of you. ट्रेलर में तो बहुत मस्ती देखा, बट सेट्स पे क्या मस्ती किया, क्या प्रैंक्स किया? ऑल्सो डिड यू मिस अली फजल? वी ऑलवेज मिस हिम यार. जब भी याद आती है मिर्ज़ापुर देख लेते हैं. बट मस्ती का जेन्युइनली इस फिल्म में जितनी भी मस्ती आपको स्क्रीन पे दिख रही है उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. हम एड़ियाँ घिस घिस के काम करते हैं सेट पर, क्योंकि हमारी लोकेशंस and the kind of temperatures that we actually shot in. We have shot for ranging from like -20 degrees to 49 degrees to 51 degrees. It's been a maddening experience shooting this one, and it has only been possible because of this magnificent crew and the team that we got. चाहे वो स्पॉट टीम हो, चाहे वो लाइटिंग टीम हो, चाहे वो कैमरा टीम हो, चाहे डायरेक्शन टीम हो. किसी किसी लोकेशन में हम सब भी एक एक इंसान, सब के सब, दैट एरिया वे वी क्लाइम्ड डाउन ऑलमोस्ट 2000 feet टू शूट अ पर्टिकुलर सीक्वेंस. वहाँ पे सब एक एक इक्विपमेंट हाथ में उठा के लेके जा रहे थे. वहाँ पे कोई हायरार्की सिस्टम नहीं था. वी आर all of us have been a part of that family as a unit, and that just makes it very easy for us. And the love that जो ट्रेलर में इतना प्यार दिखा रहे हैं लोग, इन्होंने हमें 10 साल इतना ज़्यादा प्यार दिया है, so many folds of it. I feel it just, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक बहुत अच्छी फिल्म उनको प्रेजेंट करें, तो हम कुछ भी हद तक जाते हैं वो करने के लिए. हेलो पंकज सर, हाय. दिस साइड. ये पंडित जी. आई एम दीपक पांडे फ्रॉम भारत 24. मेरा सवाल आपसे ये है कि आज आप जो मुकाम हासिल किए हो, इसके पीछे आप किसे आभारी मानते हो? बहुत लोगों को, आपको भी. हाँ, माता पिता को, टीचर्स को, डायरेक्टर्स को, राइटर्स को, उन प्रोड्यूसर्स को जिन्होंने मौका दिए. तो बहुत लोग हैं. किसी एक व्यक्ति की सफलता में, यात्रा में बहुत लोगों का योगदान होता है, तो उन सब का आभारी हूँ मैं. Hello. Hi. For most of us, Fukregiri begins at school. And I see a lot of education in school out here. Is there a Fukre moment that one of you or most of your representatives, Pankaj ji aap, and Richa, the Fukre boys, and Ritesh, especially to you two. Yes, there's a Fukre moment that you would like to share, which began at school. इनको सोचना पड़ेगा कौन से बता पाएंगे. हाँ, बताने लायक कौन से. I've heard a lot about you. Qasim, oh my God. Today being Teachers' Day, I think it'll be very relevant if you could share a message to your teachers about how's the journey been from then to now. You know, I mean, to be honest, I think obviously all of us, I mean, you know, our foundation, to be honest, since we're talking, and you know, what you do at your school. Like, and I'm saying this because my son, when I'm talking about a few years ago, went to his school, and the only thing his teacher told me is that whatever you're going to do at home is 20% and 80% is what we'll make out of your child in school. But you have to balance that 20%
with us. So I go back to think that this is exactly what happened. Our foundation is made at school. So everything we are today and who we are, I think a lot of it has been shaped by the educators we had at that school, because that is the age you're impressionable also. So it's how you're molded, how you're guided, and obviously with parents at home. So teachers come in various formats, right? Whether your parents are your teachers at a certain phase in your life, your teachers in school are your teachers, you start going to work and people you learn under are your teachers. So I think even today I still feel that I'm going to continue learning and I still have a lot more to do. So yeah, happy Teachers Day. हेलो, मेरा सवाल पंकज जी से. पंकज सर, सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे. धन्यवाद. और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सब यही चाहेंगे कि आप जैसा पिता और एडवोकेट हर कोर्ट में हो और हर घर में हो. एक सवाल फुकरे, जब आपने कहा कि जब फुकरे स्टार्ट दरवान था, छोटा सा कैरेक्टर था और आज पूरी मूवी की दरवानी कर रहे हैं. सो ये कहना ठीक होगा कि उस टाइम आपको फुकरे की ज़रूरत थी और आज आपके बिना फुकरे नहीं बन सकती थी क्या? नहीं, आपकी मर्जी, आप जो चाहे कह सकते हैं, डेमोक्रेसी है. पंडित मैं कुछ बोल सकता हूँ? पंडित मैं कुछ बोल सकता हूँ? ये जब तक हमारी पिक्चर में दरबान बन के रहेंगे ना, इन्होंने कहा हम तीसरे पार्ट में पूरी पिक्चर में दरबान का काम कर रहे हैं साथ में. We feel very safe that he is our दरबान, and I think anybody who works with him feels very very safe कि हाँ पंकज जी हैं तो हमारी पिक्चर सेफ है. And thank you so much पंकज जी for that. और पार्ट वन भी पंडित के बिना नहीं बन सकती. मैं नहीं होता तो भोली से मिलवाता कौन इनको? Correct. Hello, in center. Hi, Shilpa here from Mayapuri magazine. ऋषा, आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरह से फिल्म की अगर हम बात करें तो काफ़ी कम फिल्में होती हैं जिनके सीक्वल्स भी इतने वर्क करते हैं और जिस बजट में फिल्म बनती है उससे ज़्यादा इसका मिलता है. और इस फिल्म के साथ भी ऐसा हुआ, जिस तरह से दोनों सीज़न इतने अमेजिंग रहे. तो आपको क्या लगता है कि इस फिल्म के इस प्रोजेक्ट की खास बात क्या है अकॉर्डिंग टू यू कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं और इतना क्रेज़ है अभी तक? It feels like I'll repeat myself, पर अच्छे लेखन के बिना ये पॉसिबल नहीं है. कोई भी फिल्म अगर जैसे जो हम लोगों के घर की कहानी है, पार्ट वन में लोगों को, आप मत करो ना उनको, वो मैं बात कर रही हूँ. एक मिनट, मैं ये बोल रही थी कि जैसे घर में जब पार्ट वन में आप देखते हो कि लाली के पापा अपनी दाढ़ी सेट करते करते उस पर अपनी चप्पल फेंक रहे हैं, या चूचा की मम्मी उसकी पिटाई कर रही है, या घर में जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं उनमें एक किस्म की, हिंदी का शब्द है आत्मीयता है, एक मिडिल क्लास ह्यूमर है जो हम सब के क्या कहें, घर की असलियत है या परवरिश में एक उसका एक ट्रूथ है. हम सब के मिलियो, हमारे परिवेश का वो एक हिस्सा है. तो पहली बात तो वो. दूसरी बात, जब उन्होंने कहा सेफ और क्लीन कॉमेडी लिखना, एक ऐसी फिल्म जहाँ लोगों के सपने बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे, यहाँ कोई ऐसा नहीं होता कि 30,000 करोड़ की चोरी हो रही है, ऐसा नहीं होता. हमेशा कुछ छोटा सा गोल होता है, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे गर्लफ्रेंड बनानी है, इस तरह की चीज़ें. तो मैं तो खुद ही भूल गई, तुझे तो डिस्ट्रैक्ट कर दिया बीच में. पानी, मम्मी को पानी पीना था. चल ठीक है. तो आई एम ओनली जोकिंग. आई एम सेइंग बेसिकली राइटिंग, और उसमें एक सच्चाई है, हम सब की असलियत, एक क्लीन कॉमेडी. हाँ, बच्चों के साथ आप देख सकते हैं, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है फिल्म. बच्चों को चूचा बहुत प्यारा लगता है, लाली बहुत प्यारा लगता है. तो बहुत कुछ इस तरह का होता है फिल्म में जो, और मैं तो ये भी कहूँगी, अभी भी आप अपने पूरी फैमिली के साथ जाके जब फिल्म देखेंगे, इट विल बी एन एक्सपीरियंस, इट विल बी अ मेमोरी. और आई थिंक दैट्स व्हाट द जॉब ऑफ स्टोरी टेलिंग इज, नॉट टू क्रिएट नाइस मेमोरीज. आप कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, क्या खास बात है इस तरह से जो क्रेजी प्यार जो ऑडियंस का मिलता है, हर किरदार को मिलता है? जी, वो लोग पसंद करते हैं. ये कहानी, ये दुनिया रिलेटेबल है, आसपास की है. प्लस हर तीनों पार्ट में आप देखेंगे तो जो एक ह्यूमर और कॉकनेस के साथ साथ बड़ी सबटेक्स्ट में कई इंपॉर्टेंट चीज़ भी कहती है फुकरे. इस पार्ट में भी आप सबटेक्स्ट में जाएंगी जब फिल्म देखेंगे 28 को, तो कुछ ऐसे बातें हैं जो अगर समझने वाला चाहे तो बहुत ज़रूरी और हंसी के आगे की बात है. तो दोनों है, प्राइमरी ह्यूमर है, एंटरटेनमेंट है, बट उसके संग संग एक बात भी लिखते हैं विपुल जी और मृग सर, जो इस फिल्म में भी है.
हेलो, मेरा नाम आरती सक्सेना है और मंजोत जी से मेरा सवाल है थैंक यू। कि मैं वेट ही कर रहा था। कि मतलब आपका ऐसा जो लग रहा है कि उस शादी का आपका प्रस्ताव जो किरदार है वो पिक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरा किरदार सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, लाइक सब आप पे डिपेंड है, सब आपसे आपको भाव दे रहे हैं। हाँ, तो नहीं, मेरे आप हिसाब ही से बता रहे हो पूछ रहे हो? नहीं बता रही हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच, आपको ऐसा लगता है, थैंक यू। तो हाँ जी। फुकरे 1, 2, 3 मतलब कंटिन्यूटी में आप हैं, तो अपने रोल के बारे में क्या बताना चाहेंगे? रोल के बारे में यार, आप सबने फुकरे देखी है, रिटर्न्स देखी है, रोल सेम है। लाली वही है, चूचे से लड़ता रहता है, अपने पापा से लड़ता रहता है। नहीं नहीं, ऑब्वियसली जब हम जाते हैं, पता चलता है कि फुकरे 3 बन रही है, उसका जो प्रोसेस होता है, जो आप तैयारी करते हैं, और नरेशन होता है, रीडिंग्स होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, उसके पीछे जब हमारे ऊपर मेहनत होती है, हमारे डायलॉग डिलीवरी पे सब चीज़ें काम किया जाता है, बॉडी लैंग्वेज पे, तो ये सारा जो पूरा प्रोसेस होता है, ऑब्वियसली इस पे मेहनत करते हैं हम, एंड सारे एक्टर्स करते हैं। और इस बार भी अभी आपने पूछा ना अभी कि आपने ये कुछ और फिल्म पूछा लोगों मैंने। को क्यों पसंद आती है, ये इसकी क्यूटनेस की वजह से पसंद आती है। थैंक यू। इसकी वजह से। Can we आई take लव यू ब्रदर। मंजोत जैसा कोई नहीं। पंकज जी से मेरा सवाल है कि हिंदी को आपने सबसे ज़्यादा प्रमोट किया है, लाइक अमित जी शुद्ध हिंदी बोलते हैं, उसके बाद आप हैं जो शुद्ध हिंदी बोलते हैं, जबकि आज के टाइम में डायलॉग भी इंग्लिश में लिख के दिए जाते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि ऐसे समाज में आप हिंदी को लेके इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हैं, और आप हमेशा शुद्ध हिंदी बोलते हैं, मतलब वो मेरा मेन था। नहीं, इस फिल्म में भी मेरी स्क्रिप्ट देवनागरी में ही मिली थी। मृग ने मुझे देवनागरी में ही दिया था, क्योंकि देवनागरी में मैं याद कर लेता हूँ एक बार पढ़ के, रोमन में मुश्किल होता है। हिंदी सिनेमा का हिस्सा है, हिंदी हार्टलैंड से आते हैं हम, हिंदी ही खाते हैं, हिंदी पीते हैं, हिंदी बिछाते हैं, हिंदी का ही जीते हैं। तो बाकी अन्य भाषाओं से भी उतना ही प्यार है, उतना ही सम्मान है, कोई भी भाषा हो, पर हिंदी हमारी पहचान है। क्या बात है। हिंदी में कहते हुए ये आखिरी प्रश्न लेना चाहेंगे हम हमारी आखिरी तो उर्दू हो गया, अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न आपको, यू वांट द माइक? हाँ, एक सेकेंड सर। Very kind of you. सवाल मेरा डायरेक्टर साहब से है। मैं सिराज सैयद, इंडिया correspondent, filmfestivals.com. Charlie Chaplin said that somebody slipping on a banana skin and falling in a manhole is not comedy. Although at that time, this was supposed to be comedy. He says, somebody walks, notices a manhole, does not fall in it, takes a step across, then slips on a banana skin and falls back into the manhole. That is comedy. वाह, क्या बात। So, one would like to know what is your definition of true comedy? सर वो चार्ली चैपलिन थे, इतना बोल गए, मैं तो इतना सोचता ही नहीं सर। मतलब भी जैसी ये फिल्म है, मतलब जब हम विपुल और मैं बैठते हैं लिखने, जब प्रोड्यूसर का आदेश आता है बनाने के लिए, तो हम उनको बोलते हैं कि हाँ हम आ रहे हैं, और हम बस बैठ के एक दूसरे से खाना क्या खाना है, क्या मंगवाएं आज, थोड़ा बहुत गाने इधर उधर के बातें, और बीच में 1-2 लाइनें लिख लेते हैं। तो उस हिसाब से फिर धीरे धीरे स्क्रिप्ट तैयार होती रहती है, और फिर वो जाके हम सुना देते हैं। सो इसीलिए टाइम भी लगता है हमें। आप देखेंगे एक्चुअली 10 साल में 3rd इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि ना ही देखिए, एक बहुत बढ़िया एक बहुत मानने वाली बात ये भी है प्रोड्यूसर्स की तरफ से भी, कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी होने के बावजूद भी प्रेशर कभी नहीं आता कि फटाफट बनाओ। सो हमें टाइम मिलता है, हम बातें करते हैं, हम
एक शब्द यूज़ करना चाहूँगा, बकवास करते हैं काफ़ी आपस में एक दूसरे अब से। मुझे मालूम पड़ा ये 4 साल कहाँ गए। मेहनत किया 1 महीना। हाँ, तो वो फिर पेपर पे उतरता है, तो वही फिर हमें आपने आज स्क्रीन पे देखा अभी 2.5 मिनट के ट्रेलर में, एंड फिल्म भी ऐसे ही है। 2 फिल्में पहले आ चुकी हैं जिसमें आप देख चुके हैं। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन सर, कॉमेडी हर टाइप की होती है, स्लैपस्टिक भी होती है, डायलॉग बेस भी होती है। जैसे अभी एक मैम ने कहा कि पंकज जी जैसे बोलते हैं वो लगता भी नहीं है कि कॉमेडी कर रहे हैं, पर लोग फूट फूट के हंसते हैं। तो वो सिर्फ एक अपने अंदाज में एक लाइन भी बोल जाते हैं, तो कॉमेडी वो भी होती है। तो आई थिंक हर फॉर्मेट है, एंड बस हम तो अपना इंस्टिंक्ट फॉलो करते हैं। दैट्स इट। थैंक यू। Thank you so much for all the questions by the media. Thank you so much for all the answers and the patience. मैं अब फोटो ऑप हो उससे पहले बस क्विकली इन लोगों को भी स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ, जिनके लिए हमने पहले तालियां ऑलरेडी मारी। एंटरटेनमेंट एंड विपुल विग, द राइटर, द मैन क्रिएटिंग these beautiful characters who stay with us forever. Can we continue to clap for the entire cast, crew, makers, madness, menace creators of Fukre 3?